بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ 10 منٹ کے بعد نئے سیکرٹری نے انٹرکام پر اطلاع دی کہ مسٹر لیمبوڈا فون پر ہیں۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو لیمبوڈا، خوب وقت پر آئے۔ ابھی وہ مکار ٹیلیپیتھی جاننے والا میرے دماغ میں آنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ لیمبوڈا نے فون پر کہا، جناب وہ میں تھا۔ میں نے 2 بار آپ سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی، دونوں بار کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر بھی آپ نے سانس روک لی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم آ رہے تھے تو تم نے پرانے کوڈ ورڈز کیوں ادا کیے؟ نئے کوڈ ورڈز کیوں نہیں سنائے؟ نئے کوڈ ورڈز؟ ہمارے درمیان ابھی نئے کوڈ ورڈز طے نہیں ہوئے ہیں۔ کیا آپ پھر دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کیا تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے دماغ میں آ کر نئے شناختی الفاظ طے نہیں کیے تھے؟ بالکل نہیں، میں اس وقت آیا تھا جب آپ مسٹر ہالی مین سے فون پر گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد اب آیا ہوں۔ اس درمیان اگر کوئی آیا تھا اور اس نے نئے کوڈ ورڈز مقرر کیے ہیں تو یہ سراسر فریب ہے۔ جنرل نے جھنجھلا کر کہا، میں پاگل ہو جاؤں گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسے یقین کروں کہ وہ غلط تھا اور تم درست ہو؟ سیدھی سی بات ہے، میں فون پر بول رہا ہوں، وہ فریبی آپ کو فون پر دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ جو دماغ میں آ سکتا ہے کیا وہ فون پر باتیں نہیں کر سکتا؟ میں سمجھ گیا ہوں مجھے بری طرح الجھانے کے لیے گہری چالیں چلی جا رہی ہیں۔ تم واقعی جان لیمبوڈا ہو یا نہیں، پہلے میں اپنے طور پر تصدیق کروں گا، پھر تم سے گفتگو کروں گا۔ فی الحال تم جاؤ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر سوچنے لگا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فوراً توڑ کرنا ہوگا۔ دشمن بڑی چلاکی سے ہمارے اندر جگہ بنا رہا ہے۔ ایسے وقت اپنے مشیر سے ہی اہم مشورے کیے جا سکتے تھے۔ اس نے ہالی مین سے فون پر رابطہ کیا۔ ہالی مین نے کہا، سر اس وقت مسٹر لیمبوڈا میرے دماغ میں ہیں، آپ کے موجودہ پرابلم کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ جنرل نے کہا، سانس روک لو، فی الحال صرف مجھ سے باتیں کرو۔ ہالی مین نے حکم کی تعمیل کی۔ سانس روک کر جان لیمبوڈا کو دماغ سے نکالا، پھر کہا، وہ جا چکا ہے۔ واقعی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں کس جان لیمبوڈا پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ جو پرانے کوڈ ورڈز ادا کر رہا ہے یا وہ جو نئے کوڈ ورڈز مقرر کر چکا ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ فی الحال کسی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ جو جھوٹا اور فراڈ ہے وہ جلد ہی ظاہر ہو جائے گا۔ جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا تب تک جان لیمبوڈا ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ ہمارے بہت سے کام رک جائیں گے۔ آپ نے ایک دوسرا ٹیلیپیتھی جاننے والا فرہاد کا ہم شکل پیدا کیا ہے، اسے ہر پہلو سے فرہاد بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے اب میدان عمل میں لایا جائے۔ اتنی عجلت میں اسے استعمال کیا جائے گا تو وہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا۔ ہم اسے فی الحال ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ڈمی فرہاد بہت ہی خفیہ طور پر ہمارے کام آتا رہے گا۔ ہم اسے بہت ہی محدود کام دیں گے تاکہ دشمنوں سے اس کا سامنا نہ ہو۔ وہ اپنے ٹریننگ سینٹر کی حدود سے باہر نہیں نکلے گا۔ ٹھیک کہتے ہو۔ جان لیمبوڈا کو کچھ دنوں کے لیے فارغ کرنا ہوگا۔ ٹیلیپیتھی کے معاملے میں ہمیں ایک نئے ذہن کی ضرورت ہے۔ یوں ڈمی فرہاد کی عملی ٹریننگ بھی ہوتی رہے گی۔ جان لیمبوڈا کو یہ حکم سنا دیا گیا کہ وہ فی الحال آرام کرے اور اگر مصروف رہنا چاہتا ہے تو معلوم کرے کہ وہ دشمن کون ہے جو لیمبوڈا بن کر دھوکہ دے رہا ہے۔ جب تک اس کی اصلیت معلوم نہیں ہو تب تک جان لیمبوڈا جنرل سے کبھی رابطہ نہ کرے۔ میں سونیا کے ساتھ سوئٹزرلینڈ سے نکل آیا تھا۔ سونیا کچھ عرصہ ماریا کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اس لیے ہم لندن آ گئے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہیں اتنے عرصے بعد ماریا کیوں یاد آ گئی ہے؟ سونیا نے کہا، تمہیں بہت عرصے بعد یاد آ رہی ہے۔ جب تک میں پیرس سے دور فرہاد کی فیملی کے لیے نئی بستی آباد کرتی رہی، وہاں ضروریات کا تمام سامان پہنچاتی رہی، اس وقت تک ماریا میرے ہی ساتھ رہا کرتی تھی۔ اب وہ پھر میرے ساتھ رہے گی۔ میں نے کہا، کیوں نہ ہم اپنی نئی بستی فرہاد ویلیج میں جا کر رہیں؟ رہ سکتے ہیں، لیکن میری اور تمہاری ڈمی وہاں پہلے سے موجود ہے تاکہ دشمنوں کی بو ملتی رہے۔ ہاں، دشمن سوئٹزرلینڈ میں ناکام ہونے کے بعد فرہاد ویلیج کا بھی محاصرہ کریں گے۔ ہماری وجہ سے ڈمی، سونیا اور فرہاد کو جان کا خطرہ ہے۔ ہمیں ان کی حفاظت کے لیے وہاں دوسری حیثیت سے موجود رہنا چاہیے۔ سونیا نے ماریا سے پوچھا، فرہاد ویلیج چلو گی؟ ماما، میرا بس چلے تو قدم قدم پر ساتھ چلوں، آپ کے ساتھ کانٹوں کے بستر پر سوتی رہوں، مگر کبھی آپ اور کبھی پارس میرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تم ساتھ چھوڑنے کی وجہ جانتی ہو؟ جی ہاں، وہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ پہلے میں ایب نارمل تھی، غصے میں دشمنوں کو اور پیار میں پارس کو ڈس لیتی تھی، لیکن اب تو میں مہذب ہو گئی ہوں، میڈیکل رپورٹ کے مطابق نارمل ہوں اور سوسائٹی کے آداب اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا فائٹنگ اور ایکشن میں رہنے کی مشقیں جاری ہیں؟ جی ہاں، آپ کے ساتھ رہوں گی تو رہی صحیح کمی پوری ہو جائے گی۔ میں نے ماریا کے والدین سے کہا،
क्या आप इसे हमारे साथ जाने की इजाज़त देंगे? बाप ने कहा, ये आपकी मेहरबानियों से हमें मिली थी, आप इसकी भलाई के लिए कहीं भी इसे ले जाएं। मैं भलाई का वादा नहीं करता, क्योंकि कदम कदम पर दुश्मन नामेहरबान है। हम हमेशा खतरात से खेलते आए हैं। मारिया की माँ ने कहा, हमने हत्तुल इम्कान से दुश्मन हालात से निपटने की तरबियत दिलाई है। आज की दुनिया खतरात से भरपूर है, यह आप लोगों के साथ रहेगी तो फौलाद हो जाएगी। बाप ने कहा, सीधी सी बात है, ये जब से हमें मिली है हमने इसके दिलो दिमाग पर सिर्फ पारस की हुकूमत देखी है। हमारे रोकने से ये नहीं रुकेगी। इसके मेके से रुखसत होने की उम्र हो चुकी है। माँ ने पूछा, इतना बता दो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा, हम यहाँ से पेरिस जाएंगे, फिर पेरिस से स्टेट्स के किसी शहर में जाएंगे। मैंने झूठ कह दिया कि अमेरिका जाएंगे। हमारी ताक में रहने वाले दुश्मन मारिया के वालिदैन के दिमागों में भी आकर चोर ख्यालात पड़ते होंगे। वो उनके ज़रिए ये मालूम कर सकते थे कि हम मारिया को लेकर फरहाद विलेज गए हैं, लिहाजा मुझे मसलहतन झूठ बोलना पड़ा था। हम फ्रांस के एक हेलीकॉप्टर में लंदन से रवाना हुए। सफ़र के दौरान मरीना ने मुझे मुखातिब किया। कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, पापा एक बात पूछने आई हूँ। पापा समझती हो तो इजाज़त के बगैर पूछो। क्या आप जर्नल के दिमाग में जाते हैं? मैं कैसे जा सकता हूँ? वो सांस रोक लेता है। आप जॉन लेम्बोडा की आवाज़ और कोड वर्ड्स के ज़रिए जर्नल के अंदर पहुँच सकते हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं है। जब इतना अच्छा मौका सामने है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं ज़ुबान का धनी हूँ। तुमसे कह चुका हूँ कि तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हारे मुल्क में कोई बड़ा कदम नहीं उठाऊँगा। अगर हमें नुकसान पहुँचता होगा तो पहले मैं तुमसे शिकायत करूँगा। तुम शिकायत दूर करने के काबिल नहीं रहोगी तो फिर मैं हरकत में आऊँगा। शुक्रिया पापा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वैसे आपने ट्रांसफार्मर मशीन के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम किया होगा। बेशक मालूम किया है। तुम जेफरी वॉल्टन को ज़ख्मी छोड़ आई थी। उसके दिमाग में कोई भी जाकर बहुत से अहम राज मालूम कर सकता था। मैंने भी मालूम किया, क्योंकि मालूमात हासिल करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। किसी भी बुरे वक्त के लिए ये ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं मैं कभी आप लोगों पर बुरा वक्त लाऊंगी? हमारे तुम्हारे सोचने और अहद करने से कुछ नहीं होता। कभी हालात ऐसे पेश आते हैं जिसकी हम कभी तवक्को नहीं करते। खुदा न खास्ता तुम कभी बीमार हो जाओ, ख्याल ख्वानी के काबिल ना रहो, या दुश्मनों के सामने बेबस हो जाओ और हमें ज़रूरी मालूमात फराहम ना कर सको, तो ऐसे में हमारी अपनी मालूमात काम आएंगी। आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन कभी गलत फहमी भी पैदा हो जाती है। कोई गलत फहमी हो चुकी है तो बताओ। आपने ज़ख्मी जेफरी वॉल्टन के दिमाग में जाकर लेम्बोडा के मखसूस कोड वर्ड्स मालूम किए। अब कोई उन्हीं कोड वर्ड्स के ज़रिए जर्नल के दिमाग में आ चुका है। अगर वो आप नहीं हैं तो फिर मैं हूँ, क्योंकि जेफरी के पास जाने वाले हम दोनों हैं, तीसरा कोई नहीं। तीसरा क्यों नहीं है? क्या तुम जर्नल के तमाम दुश्मनों का हिसाब रखती हो? जेफरी वॉल्टन ज़ख्मी था। उसका दिमाग तमाम टेलीपैथी जानने वालों के लिए एक खुली किताब की तरह था। क्या मास्क मैन की अल्पा ये किताब नहीं पढ़ सकती थी? क्या इसराइल का जे मॉर्गन उसके दिमाग में नहीं आ सकता? ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स की तरह जर्नल का कोई और ख्याल ख्वानी करने वाला गद्दार नहीं बन सकता। क्या जर्नल की आस्तीन में सांप नहीं होंगे? जी हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। खुदा करे कि जर्नल का शुबा आप पर गलत हो। मरीना, अभी तुम बच्ची हो, जर्नल की आड़ ना लो। तुम्हें मुझ पर शुबा है और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं होता। ये बीमारी बढ़ती ही जाती है। मैं पेशीन गोई करता हूँ कि जो भी जर्नल के दिमाग में लेम्बोडा बनकर आ चुका है वो ट्रांसफार्मर मशीन के मुतल्लिक भी बहुत कुछ मालूम कर चुका है। अगर कभी उसने मशीन को नुकसान पहुँचाना चाहा तो तुम मुझ पर ही शुबा करोगी। बेहतर है मेरे पास वक्त ज़ाया ना करो। जर्नल को अक्ल सिखाओ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ट्रांसफार्मर मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। अब जाओ और मेरा मूड ख़राब ना करो। मैंने सांस रोक ली। वो दिमाग से निकल गई। मैंने सोनिया को उसके मुतल्लिक बताया। सोनिया ने कहा, मरीना 2 कश्तियों पर सवार है। अपने वतन की मोहब्बत भी है और पारस से इश्क भी है। ना वतन की मोहब्बत दिल से निकाल सकती है, ना पारस से जज्बाती रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन ये हमारे बेटे के लिए किसी भी वक्त मुसीबत बन सकती है। मैं बेटे को समझाता हूँ कि वो बेशक मरीना को दिल से चाहे, उसे कभी धोखा ना दे, लेकिन उसे धोखा भी ना खाए। इसके लिए उसे पहले से मोहतात रहना चाहिए। मैंने पारस के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, खैरियत है बेटे? आप 15 मिनट बाद आएँ। मैं वापस आ गया। सोनिया से बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है, जर्नल के दिमाग में लेम्बोडा बनकर कौन गया होगा? वो बोली, मुझे तो ये यहूदियों की चाल लगती है। तुम मास्क मैन को नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर रही हूँ। वो भी अल्पा को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यहूदियों की मकारियों को उनकी एक फितरी आदत से पहचाना जाता है। वो आदत क्या है? वो बोली,
सांप की फितरत डसना है। तुम सांप को दूध पिलाओ, वो पीते वक्त नहीं डसेगा, लेकिन यहूदियों को लाख दूध पिलाओ, लाख उन पर एहसानात करो, वो एहसान मानते जाएंगे और डसते भी जाएंगे। आजकल अमेरिका उन्हें टेलीपैथी की इमदाद दे रहा है। ऐसे वक्त जे मॉर्गन जनरल के दिमाग में शैतानी हरकतें करेगा तो जनरल कभी यहूदियों पर शुबा नहीं करेगा, और यही यहूदियों की कामयाब सियासत है कि ठीक दूध पीते वक्त दूध पिलाने वाले को डस लो तो कोई तुम पर शुबा नहीं करेगा और तुम मस्कीन और एहसान मंद नजर आते रहोगे। सोनिया की बातों में वजन था। मैंने इसराइली फौज के एक अफसर के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था। उसके ज़रिए ताज़ा तरीन खुफिया मालूमात हासिल होती रहीं, लेकिन वो अफसर जे मॉर्गन के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था। उसे हमारी तरह इतना ही अंदाज़ा था कि अब उसका नाम जे मॉर्गन नहीं रहा होगा और उसकी आवाज़ और लहजा बदल दिया गया होगा। अलबत्ता ये मालूम हुआ कि अमेरिका से एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक सुराग रिसां आए हुए हैं और उन तीनों को सख्त पहरे में रखा जाता है। उनकी हिफाजत के लिए ख़ास अमरीकी फ़ौजी दस्ता आया था। जहां उन तीनों की रिहाइश गाह थी, वहां सिर्फ 2 इसराइली हुकाम और 2 इसराइली फ़ौजी अफसर जा सकते थे। इतनी एहतियात और हिफाजती इंतजामात को देखते हुए यकीन से कहा जा सकता था कि वो तीनों इंजीनियर, डॉक्टर और सुराग रिसां दरअसल टेलीपैथी जानने वाले थे, इसलिए उन्हें गैर मामूली अहमियत दी जा रही थी। पिछली बार मैं एक ऐसे आला हाकिम के दिमाग में पहुंच गया था जो ख्वाब आवर गोलियां खाकर सोया करता था। ऐसे वक्त उसने मुझे अपने दिमाग में महसूस नहीं किया था और मैंने उसके अंदर जाकर पापा डोग की खुफिया रिहाइशगाह का पता मालूम कर लिया था और यूं पापा डोग का खात्मा हो गया था। इस बार उन 3 टेलीपैथी जानने वालों को किसी खुफिया अड्डे में छुपा कर नहीं रखा गया था, लेकिन उनके आसपास सिर्फ योगा के माहिर फौजी जवानों को रखा गया था। 2 इसराइली हुकाम और 2 फौजी अफसरान के मुतल्लिक भी पूरी तरह तस्दीक की गई थी कि वो कोई नशा या ख्वाब आवर दवा इस्तेमाल नहीं करते हैं और कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमागों में नहीं आ सकेगा। बेशक निहायत समझदारी से बड़े सख्त इंतजामात किए गए थे। फ़िलहाल मैं कोई रास्ता नहीं बना सकता था और फ़िलहाल मुझे कोई रास्ता बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। जब ज़रूरत होगी तो तवज्जो दूंगा और तवज्जो दूंगा तो कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अभी मैं सिर्फ मालूमात हासिल कर रहा था। जिस आला अफसर के दिमाग में मैं था, उसकी ड्यूटी एक ऐसे बंगले में थी जिसके सामने 10,000 गज के प्लॉट पर एक बहुत बड़ी कोठी थी। उसी कोठी में वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले रहते थे। आला अफसर दूर से उनकी निगरानी के लिए अपने अमले के साथ सामने वाले बंगले में रहा करता था। अचानक वो कुछ कमज़ोरी सी महसूस करने लगा। पता चला आसपास के फौजी जवान भी ड्यूटी पर अलर्ट नहीं हैं। उन्हें गन लेकर खड़े रहना चाहिए था, लेकिन वो कमज़ोरी से बैठ गए थे। मैंने अफसर को टेलीफोन की तरफ दौड़ाया। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। अफसर ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं 3 अमरीकी मेहमानों की रिहाइश गाह से सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। हम सब अचानक कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर के दिमाग में छलांग लगाई। उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैं उसे दौड़ाता हुआ एक टेलीपैथी जानने वाले के कमरे में ले गया। वो कमरा अंदर से बंद था। सिक्योरिटी ऑफिसर ने दस्तक देते हुए पूछा, सर, आप खैरियत से हैं? अंदर से आवाज़ आई, खैरियत नहीं है, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, फ़ौरन हमारे ख़ास डॉक्टर को बुलाओ। मैं उस ख्याल ख्वानी करने वाले के अंदर पहुँच गया। उसने एहतियातन दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था ताकि कोई दुश्मन हमला करने के लिए अंदर ना घुस आए, और उसे शुबा था कि ये किसी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले की ज़बरदस्त चाल है। उसने अपनी दिमागी तवानाई को आजमाने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। मैंने चुपके से परवाज़ को सहारा दिया। वो दूसरे टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में पहुंचकर बोला, रॉबर्ट फिशर, मैं वॉल्कर बोल रहा हूँ। तुमने सांस नहीं रोकी, इसका मतलब है तुम भी दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला हो गए हो। ठीक कहते हो तुम वॉल्कर, क्या तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? हाँ, चलो हम अपने तीसरे साथी रॉजर की खैरियत मालूम करें। वॉकर तीसरे साथी रॉजर के दिमाग में आया, लेकिन रॉबर्ट फिशर ख्याल ख्वानी की परवाज़ ना कर सका क्योंकि मैं वॉकर को सहारा दे रहा था। फिशर सहारे के बगैर अपनी जगह तन्हा रह गया था। उधर तीसरा साथी रॉजर पूछ रहा था, तुम ऐसी हालत में कैसे ख्याल ख्वानी कर रहे हो? वॉकर ने कहा, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, मेरी दिमागी तवानाई भी जवाब दे रही है। रॉजर ने कहा, जानते हो हमारे साथ अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? शायद किसी दुश्मन ने हमारे खाने पीने की चीज़ों में कोई ज़रर रसां दवाई मिलाई है। ये बात नहीं है। इस कोठी के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और कोठी के आसपास के बंगलों में रहने वाले फौजी भी हमारी ही तरह कमज़ोर पड़ गए हैं।
सैकड़ों लोगों को खाने की चीज़ों में ज़रर-ए-सा दवाइयाँ बैक वक्त नहीं दी जा सकती। दरअसल थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर अतराफ में परवाज़ कर रहा था। उसने हमारी कोठी के चारों तरफ भी एक चक्कर लगाया था। ओह गॉड, तुम ये कहना चाहते हो कि हेलीकॉप्टर के जरिए आसाबी कमजोरियों में मुब्तला करने वाली दवाएं फ़ज़ा में छिड़की गई हैं? बेशक यही बात है। वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर था। किसी ने एतराज़ नहीं किया। सब ने समझा फ़ज़ाई फ़ौज के जवान हमारी निगरानी कर रहे हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने फ़ज़ाइया के किसी अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाकर ऐसी हरकत की है। उसकी बातों के दौरान फायरिंग की आवाज़ें आने लगीं जो बतदरीज करीब आती जा रही थीं। फिर कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। थोड़ी देर बाद मैंने उन ख्याल ख्वानी करने वालों के अंदर रहकर देखा। कई नकाब पोश दरवाजे तोड़कर कमरों में आ गए थे। उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उनके बाजुओं में इंजेक्शन लगा रहे थे। देखते ही देखते वो तीनों बेहोश हो गए। मैं उनके दिमागों से निकल आया। फिर मैंने सोनिया को तमाम बातें बताकर कहा, मैं उन तीनों की मदद करना चाहता था। फिर सोचा वो आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला हैं, मेरा सहारा पाकर भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और मेरे किसी काम भी नहीं आएंगे। फिर यह कि उन्हें जो भी अगवा कर रहा है उसे खुशफहमी में रहना चाहिए कि हम उसकी उन कार्रवाइयों से बेखबर हैं। सोनिया ने कहा, ठीक है, मगर उन 3 टेलीपैथी जानने वालों का अगवा बड़ा मजाका खेज लग रहा है। क्यों मजाका खेज क्यों लग रहा है? अकल तस्लीम नहीं करती कि इतनी सख्त निगरानी नाकाम हो गई हो। चंद नकाब पोश आए और मुसल्लह फौजियों का मुहासरा तोड़कर 3 अफराद को ले गए। हाँ, मगर ये तो देखो कि तीनों को अगवा करने के लिए कितनी ज़बरदस्त चाल चली गई है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए दवाइयाँ स्प्रे की गईं। क्या इस उम्दा जहानत के मुजाहरे से इनकार करोगी? मुझे इनकार नहीं है, मैं हैरान हूँ। ये कौन टेलीपैथी जानने वाला है जो ज़बरदस्त जहानत का मुजाहरा कर रहा है और उसने इतनी बड़ी फ़ौज बना ली है जो अमरीकी फ़ौज का मुहासरा तोड़ देती है। इसराइली फ़ौजियों को भी धोखा देकर उन तीनों को कहीं ले गई है। मैं समझ गया, तुम अपने इसी ख्याल पर कायम हो कि यह यहूदी सियासत है। वाकई इस पहलू से देखा जाए तो जर्नल उन तीनों के अगवा का शुबा इसराइलियों पर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे खिलाफ इसराइली हुकूमत को सहारा देने आए थे। फिर उनके मुहाफिज खुद अमरीकी फ़ौजी थे। सोनिया ने कहा, एक नामालूम टेलीपैथी जानने वाला जनरल के दिमाग में आकर यह साबित कर चुका है कि वो जनरल के अंदर आ सकता है, तो तीनों टेलीपैथी जानने वालों के अंदर भी पहुंच सकता है। जनरल तुम पर शुबा करता रहेगा। इन यहूदियों ने फिर हमें मजबूर कर दिया है कि हम उनका कबाड़ा करें। अपने सर से इल्ज़ाम ख़त्म करने के लिए उन मक्कारों को बेनकाब करना होगा। वो बोली, बात सिर्फ जनरल की नहीं है, मरीना भी हम पर शुबा करेगी। क्या तुम पारस के पास गए थे? हाँ, उसने 15 मिनट बाद राबता करने को कहा था। इधर मैं इस नए मामले में मसरूफ़ हो गया था, अभी जाता हूँ। मैं उसके पास आया। वो बोला, आपने बड़ी देर लगा दी। मैं उसे 3 ख्याल ख्वानी करने वालों के मुतालिक बताने लगा। फिर उसे पूछा, मरीना कहाँ है? सो रही है, गहरी नींद में है, आपको अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकेगी। क्या कह रहे हो? पापा, उसने बहुत परेशान किया है। आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको 15 मिनट बाद आने के लिए कहा। वजह यह थी कि ये बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। मैंने पूछा, जब मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ तो दिमाग के अंदर आने की क्या ज़रूरत है? वो बोली, तुम्हारे पापा ने सांस रोककर मुझे अपने दिमाग से निकाल दिया है। वो मुझसे नाराज़ हैं। मैं तुम्हारे अंदर रहकर सुनना चाहती हूँ कि वो तुमसे क्या कहने के लिए आएंगे। मैंने कहा, तुम्हें बाप बेटे की बातें नहीं सुननी चाहिए। तुम इत्मीनान रखो, मैं उनकी नाराज़गी दूर कर दूंगा। मेरे खामोश रहने पर उसने समझा कि मैं आपसे सोच के ज़रिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर वो अंदर आएगी तो मैं महसूस नहीं कर सकूँगा। ये सोचकर वो मेरे दिमाग में आई। मैंने उसे घूर कर देखा। सामने बैठी हुई थी, मुस्कुराकर दिमाग से निकल गई। मैंने समझ लिया ये पीछा नहीं छोड़ेगी। आप मुसलसल गुफ्तगू करेंगे तो मैं इसे महसूस नहीं कर सकूँगा और ये बहुत ही गलत तरीक़ाकार इख्तियार कर रही है। ये बात मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ थी। मैं अपने कमरे में आया, अपनी अटैची से मामा की दी हुई मखसूस अंगूठी निकाल कर पहनी। फिर वापस आकर उससे कहा, मैं खामखा दूसरे कमरे में गया था। तुम तो सोच के ज़रिए हर जगह मेरे दिमाग में आ सकती हो। वो हंसने लगी। मैंने पूछा, पापा तुमसे नाराज़ क्यों हैं? वो बोली, तुम्हारे पापा को सच्ची बात कड़वी लग गई। वो छुपकर जनरल के दिमाग में जाते हैं। मैंने उनकी चोरी पकड़ ली। मैंने पूछा, कैसे? कहने लगी, साफ जाहिर है ज़ख्मी जेफरी के दिमाग से मैंने और तुम्हारे पापा ने अहम मालूमात हासिल की। लेम्बोडा के मखसूस कोड वर्ड्स भी मालूम किए। अब उन कोड वर्ड्स के ज़रिए मैं जनरल के दिमाग में जा सकती हूँ या फिर तुम्हारे पापा जा सकते हैं।
चूंकि मैं नहीं गई थी इसलिए साबित हुआ कि चोरी छुपे जाने वाले तुम्हारे पापा हैं। मैंने कहा, यकीनन पापा ने तुम्हारी बकवास को तस्लीम नहीं किया होगा। वो बोली, तुम बाप की हिमायत में सच्चाई को बकवास कह रहे हो। मैंने जवाब दिया, जिस दिन तुम मेरे बाप की दयानतदारी को समझ लोगी उनके कदमों से सर नहीं उठा सकोगी, लेकिन तुम्हारे पास समझने वाली अक्ल नहीं है। ये यकीन पुख्ता होता जा रहा है कि तुम दोस्ती के किसी खूबसूरत मोड़ पर खतरनाक दुश्मनी करोगी, और अब मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने उसके बाजुओं को गिरफ्त में लिया और फिर मखसूस अंगूठी की सुई से उसके एक बाजू में दवा इंजेक्ट कर दी। पारस ने तमाम रुदाद सुनाकर कहा, प्लीज़ पापा, अब आप दोस्ती, खुलूस और शराफत को बलाए ताक रखें। इसके चोर ख्यालात पढ़ें और तनवीमी अमल के ज़रिए इसके अंदर से बेएतमादी निकाल दें। बेहतर है इसे अपनी मामूला बनाकर रखें। बेटा दुरुस्त कह रहा था, पहले ही हमारे दुश्मनों की कमी नहीं थी। उस पर मरीना भी दोस्ती करते करते कभी दुश्मनी पर उतर आती तो ऐसी दोस्ती दुश्मनी से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। सांप आगे पीछे से आता हो तो उससे बचने के लिए उसे हलाक किया जा सकता है, लेकिन अगर वही सांप आस्तीन में पल रहा हो तो उससे बचाव की तदबीर कारगर नहीं होती। मैं मरीना के दिमाग में आकर सांप का मंत्र पढ़ने लगा। वो मुझे महसूस नहीं कर रही थी, मेरे अमल से मुतासिर होती जा रही थी। चूंकि फौलादी जहन रखती थी, मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक थी, इसलिए ज़रा देर से मुतासिर हुई। ज़रा मुश्किल पेश आई लेकिन मामूला बन गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूँ, तुम मेरी मामूला और ताबेदार हो। उसने तस्लीम किया कि मैं तुम्हारी मामूला और ताबेदार हूँ। तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगी और मेरे अहकामात की तामील करोगी। मैं तुम्हारे सवालों का सही जवाब दूंगी और तुम्हारे अहकामात की तामील करूंगी। जवाब दो, तुम पारस को किस हद तक चाहती हो? जज्बात की इंतहा तक चाहती हूँ। अपने मुल्क व कौम को किस हद तक चाहती हो? अपने मुल्क और कौम से पैदाइशी और जन्म जन्म का रिश्ता है। एक तरफ पारस हो, दूसरी तरफ मुल्क और कौम हो, तो तुम किसका साथ दोगी? किसके लिए जान की बाजी लगाओगी? मुल्क व कौम के लिए जान हाजिर है। पारस मेरी मजबूरी है, वो मेरी ज़रूरत बन गया है, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वरना इतनी बड़ी दुनिया में हज़ारों मर्द मिल जाते हैं। पारस तुमसे बददिल होगा और तुम्हारा साथ छोड़ देगा तो तुम क्या करोगी? यही एक परेशानी है, कोई दूसरा मर्द पारस की जगह नहीं ले सकेगा। मैंने उसे काबू में करने के लिए एक बार कॉफ़ी में ज़रर असर दवा मिला दी। बाद में गलती का एहसास हुआ, जिस पर जहर असर ना करता हो उस पर भला वो दवा क्या असर करेगी? तुम पारस को ज़ख्मी कर सकती हो। मैंने इस पहलू पर भी गौर किया है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है। मैं उसकी नज़रों से गिरना नहीं चाहती, कुछ इस तरह ज़ख्मी करना चाहती हूँ कि नाकामी हो तो पारस को मुझ पर शुबा ना हो। मैंने सवाल किया, अगर कोई दुश्मन उसे ज़ख्मी करना चाहे तो तुम उसे दुश्मन से बचाओगी? हरगिज़ नहीं, यही तो बेहतरीन मौका होगा। ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम दुश्मन के सर होगा और मैं उसके अंदर पहुंचकर उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लूँगी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम पारस पर कभी तनवीमी अमल नहीं करोगी और ना ही किसी भी तरह से जहनी या जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला करोगी। मैं कभी उस पर तनवीमी अमल नहीं करूँगी और ना ही किसी तरह उसे जहनी और जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला करूँगी। तुम पारस और फरहाद की फैमिली के ख़िलाफ़ किसी दुश्मन से कोई मुआहिदा या साजिश नहीं करोगी। उसने वादा किया कि वो ऐसा नहीं करेगी। मैंने हुक्म दिया, तुम अपने दिमाग में सोनिया की सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी। मैंने सोनिया की सोच इसलिए कहा कि दुश्मन कभी उसे मेरी मामूला समझकर मेरी सोच का लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में जाना चाहें तो नाकाम रहें। सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकेगा कि मैं सोनिया के लहजे में मरीना के अंदर पहुंचता हूं। उसने वादा किया कि वो सोनिया की आवाज़ और लहजे को अपने दिमाग में महसूस नहीं करेगी। मैंने कहा, अब तनवीमी नींद मुकम्मल कर लो। बेदार होने के बाद तुम ये भूल जाओगी कि पारस ने तुम्हें दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला किया था और ये शुबा नहीं करोगी कि तुम पर तनवीमी अमल किया गया है। उसने मेरे अहकामात दोहराए और फिर नींद में डूबती चली गई। मैंने पारस के पास आकर उसे बताया कि वो किस तरह उसकी दिमागी कमज़ोरी का इंतज़ार कर रही थी और उसे अपना ताबेदार बनाकर रखना चाहती थी। वो बोला, पापा, मैं उसकी फितरत को खूब समझता हूँ, आज तक उस पर कभी दिल से एतमाद नहीं किया। ये अच्छा हुआ कि उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो हमें नुकसान ज़रूर पहुँचाती, लेकिन हम उसे मामूला बनाकर कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम दोनों कहाँ हो? हम न्यूयॉर्क आ गए हैं, लेकिन मैं कुछ अरसे के लिए इससे अलग हो जाऊँगा। जिससे दिल फिर जाता है उसके साथ रहने को जी नहीं चाहता। तुम्हारी मर्ज़ी है, जो बेहतर समझो करो, मैं फिर आऊँगा। मैं सोनिया के पास आ गया।
उसे मरीना के मुतल्लिक बताने लगा। वो भी मुतमईन होकर बोली, ये अच्छा हुआ, अब उसे मज़ीद आजमाइश में मुब्तला ना करो, उसे तन्हा अपने बल पर काम करने दो, अपनी तरफ से कोई पाबंदी ना लगाओ। जब वो ठोकरें खाएगी तो हमारी दोस्ती की कदर करेगी। हम लंदन से पेरिस आ गए। फरहाद विलेज में दाखिल होने और वहाँ एक दिन भी क़याम करने के लिए फ्रांस की इंटेलिजेंस के चीफ से इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता था। सोनिया ने यह तरीक़ाकार इसलिए इख्तियार किया था ताकि हमारी बस्ती में कोई गैर ज़रूरी शख्स दाखिल ना हो सके। बाबा साहब के इदारे के जासूस हमारी बस्ती में रहने वालों और नए आने वालों को हमेशा नज़रों में रखते थे। वहाँ सोनिया पुलिस और सुराग रिसानों के दरमियान राबिता कायम रखने के लिए टेलीफोन और ट्रांसमीटर के अलावा फैक्स मशीनें नस्ब की गई थीं। खुदकार अलार्म थे जो दुश्मन की किसी गलती से पुलिस और सुराग रिसानों तक खतरे का सायरन सुना देते थे। गर्ज ये कि वहाँ दुश्मनों के दाखिले को नामुमकिन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। फरहाद विलेज में पहले ही एक डमी सोनिया और डमी फरहाद मौजूद थे जो बड़ी उमदगी से हमारा रोल अदा कर रहे थे। मैं और सोनिया पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसरान बनकर वहाँ पहुँचे। मारिया हमारी बेटी की हैसियत से हमारे साथ थी। मारिया पहले भी बस्ती में आ चुकी थी और एक अरसा तक सोनिया के साथ वहाँ रह चुकी थी। सोनिया उसे सिखा रही थी, मारिया, देखी हुई जगह को भी देखने और समझने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। तुम रोज़ सुबह जॉगिंग के लिए मीलों दूर तक जाया करोगी और गहरी नज़रों से देखती रहोगी कि हमारे मुसल्लह गार्ड्स में और हिफाजती इंतजामात में कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं तुम्हें देखने और परखने और हालात को सही तौर से समझने के गुर समझाती रहूँगी। हमें रिहाइश के लिए एक बंगला और 2 मुलाजिम भी दिए गए थे। इस बस्ती के बंगलों, क्लबों और दीगर तफरीह गाहों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिम महज मुलाजिम नहीं थे बल्कि खुफिया पुलिस के आदमी थे। हमारे दोनों मुलाजिम हमारी असलियत नहीं जानते थे, इसलिए वो पहले ही दिन से हम पर कड़ी नज़र रखने लगे थे। यह फ़र्ज़ शनासी और मुस्तैदी देखकर खुशी होती थी। ऐसा भी हुआ कि जिसने भी फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही की या जो छोटे बड़े मामलात में गाफिल पाया गया उसे फ़ौरन इस बस्ती से निकाल दिया गया। ऐसे गैर जिम्मेदार अफराद हमारे जासूसों वगैरह की नज़रों में आ जाया करते थे या हम टेलीपैथी के ज़रिए उनकी गलतियों को पकड़ लेते थे। बाबा साहब के इदारे में हमारी बस्ती के एक एक फ़र्द के नाम, पते और उनकी आवाज़ें और तस्वीर मौजूद थीं। सलमान, सुल्ताना, लैला, जोजो और रसवंती फुर्सत के औकात में किसी न किसी के दिमाग के अंदर पहुंचकर उसकी कारकर्दगी को चेक करते रहते थे। मैं भी अक्सर ये फ़राइज़ अंजाम देता था क्योंकि इस तरह मेरे नाम की वो बस्ती दुश्मनों से महफूज रह सकती थी। मैं बंगले के एक बेडरूम में आकर आराम से बैठ गया। सोनिया मारिया को साथ लेकर पूरी बस्ती का मुआयना करने चली गई। मैं उन 3 टेलीपैथी जानने वालों के पास जाना चाहता था जिन्हें इसराइल में अगवा किया गया था। अगवा करने वाले उन्हें बेहोश करके ले गए थे। बेहोशी की हालत में उनके दिमाग कमज़ोर थे और कमज़ोर दिमागों से कोई काम नहीं लिया जा सकता था, इसलिए मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ आया था। अब कई घंटे बाद वहाँ गया तो मेरी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। सोच की लहरों को उनमें से किसी का दिमाग नहीं मिला। इसके 2 मतलब ही हो सकते थे। एक तो ये कि वो तीनों मर चुके थे या फिर उनके ब्रेन ऑपरेशन किए जा रहे थे, और यही बात हो सकती थी। वो जल्द अज जल्द उन्हें ब्रेन ऑपरेशन से गुजार कर उनकी आवाज़, लहजा और वफादारी बदल देना चाहते थे। ब्रेन ऑपरेशन बच्चों का खेल नहीं होता, उसकी तैयारियां पहले से की गई होंगी और ये भी इत्मीनान कर लिया होगा कि जिस खुफिया अड्डे में वो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ कोई दुश्मन या पुलिस और फौज वाले नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ सोनिया के शुबहात की और तस्दीक हो गई। ये इसराइलियों के घर का मामला था। उन्होंने तीनों को अपने एक घर से अगवा करके दूसरे घर पहुंचा दिया था। उन तीनों को तलाश करने वाले भी अपने जासूस और फौजी थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए खुफिया ऑपरेशन थिएटर की तरफ ना जाते, अमरीकी फ़ौजियों के साथ मिलकर पूरे इसराइल में उन्हें ढूंढते फिरते और अमरीकी हुकाम को अपनी मासूमियत का यकीन दिलाते रहते कि वो अगवा के मुजरिम नहीं हैं। मैं एक इसराइली हाकिम के दिमाग में आया। उसके आसपास एक फ़ौजी आला अफसर और अमरीकी हुकूमत के 2 नुमाइंदे बैठे हुए थे। एक नुमाइंदा कह रहा था, हम यकीन नहीं कर सकते कि अगवा करने वालों ने उन तीनों को दिमागी तौर पर भी गायब कर दिया है। फ़ौज के आला अफसर ने कहा, हमें भी यकीन है अगर आपका कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उन तीनों के दिमागों में पहुंचने में नाकाम हो गया है और उनकी दिमागी तौर पर मौजूदगी साबित नहीं हो रही है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो तीनों मार दिए गए हैं। दूसरे नुमाइंदे ने कहा,
اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا برین آپریشن کیا جا رہا ہے اور وہ آپریشن اسی ملک میں بلکہ اسی شہر میں کہیں ہو رہا ہے۔ اسرائیلی حاکم نے کہا، یعنی فرحاد اور سونیا نے ہمارے شہر میں ایسے خفیہ اڈے قائم کیے ہیں جہاں وہ آسانی اور اطمینان سے برین آپریشن جیسے مشکل مراحل سے گزر سکتے ہیں۔ یہ سونیا اور فرحاد کا کام نہیں ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔